السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو آن لائن لرننگ اسکول۔ میں ہوں آپ کا انسٹرکٹر حافظ عبدالشکور۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ فرسٹ لیکچر انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ انشاءاللہ تعالی ہم آن لائن لرننگ اسکول اس چینل کے ذریعے جس طرح ہم مختلف چیزیں سیکھتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم کمپیوٹر کو ایک اسپیشلائز کورس کے طور پہ سامنے لائیں گے۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں، سلائیڈ پہ چلتے ہیں۔ What are the objectives of this video, this course? Dear students، آج کے دور میں ویسے تو ہر فیلڈ میں ایک جدت آ چکی ہے، اسی طرح میں آپ کے لیے کچھ اسپیسیفک فیلڈز لے کے آیا ہوں، آپ کو کچھ امپورٹنس بتانے آیا ہوں۔ دا گولس آف دا کمپیوٹر از ٹو پریپیئر اسٹوڈنٹس فار سم اسپیشلائزڈ ایریا۔ کمپیوٹر ایک سبجیکٹ کے طور پہ آج پڑھا جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، میں آپ کو اس لیے کمپیوٹر پڑھانا چاہتا ہوں کیونکہ کمپیوٹر ایک اسپیشلائزڈ فیلڈ کو کہتے ہیں۔ ان ایوری فیلڈ آف لائف کمپیوٹر کو یوز کیا جاتا ہے ٹو پریپیئر اسٹوڈنٹس فار جابس اینڈ انڈسٹری، بزنس اور گورنمنٹ۔ کمپیوٹر ریلیٹڈ جابس ہر انڈسٹری میں موجود ہوتی ہیں، ہر بزنس میں اور ہر گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں کمپیوٹرز کی جابس آتی ہیں۔ اس لیے ہم آپ کو کمپیوٹر کا کورس کروا رہے ہیں ٹو پرووائڈ اسٹوڈنٹس دی فاؤنڈیشن فار فیوچر ورک اینڈ کیریئرس ان کمپٹیشن بیسڈ پرابلم۔ فیوچر ورک اور کیریئرس کو جنریٹ کرنے کے لیے ہم آپ کو کمپیوٹر کورس کروا رہے ہیں۔ آئیے نیکسٹ سلائیڈ پہ چلتے ہیں۔ ویسے تو آپ کمپیوٹر کا نام سنتے ہیں کہ کمپیوٹر از این الیکٹرانک مشین، بٹ یہ اکثر لوگ نہیں جانتے کہ کمپیوٹر کس کا ایبریویشن ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ سی اسٹینڈ فار کامن، او اسٹینڈ فار آپریٹنگ، ایم اسٹینڈ فار مشین، پی اسٹینڈ فار پارٹیکولرلی، یو اسٹینڈ فار یوزڈ، ٹی اسٹینڈ فار ٹریڈ، ای اسٹینڈ فار ایجوکیشن اینڈ آر اسٹینڈ فار ریسرچ۔ So we can define computer is a common operating machine that is particularly used for trade, education and technological research. This is computer. Next slide پہ چلتے ہیں۔ اگر ہم کمپیوٹر کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو ڈیٹا ہم کمپیوٹر کو دیتے ہیں وہ ان پٹ کہلاتا ہے، اور کمپیوٹر گیون ڈیٹا کو پروسیس کرتا ہے، پروسیس کر کے یہ ہمیں آؤٹ پٹ دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ان پٹ آؤٹ پٹ ماڈل۔ ڈیٹیل سے ان پٹ آؤٹ پٹ ماڈل کو دیکھتے ہیں۔ ان پٹ، دا ڈیفینیشن آف ان پٹ از سم تھنگ انٹرڈ انٹو اے مشین اور ادر سسٹم، یعنی کہ کمپیوٹر میں کچھ بھی انٹر کرنا۔ ان پٹ سے مراد کمپیوٹر کو ڈیٹا دینا۔
An example of input is the text you type into your computer with the help of keyboard. कीबोर्ड की मदद से अगर कंप्यूटर में कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो जो टेक्स्ट आपने लिखा है दिस इज इनपुट। जो हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है वो उसको प्रोसेस करता है। अब जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस डेटा की प्रोसेसिंग होती है, वो होती है सीपीयू के अंदर। प्रोसेस क्या है? अ सीरीज ऑफ एक्शंस और स्टेप्स taken in order to achieve a particular goal or operate on data by means of a program। अगर हमने 2 नंबर्स राइट किए थे जो हमारी इनपुट थी, प्लस अगर हम लिखेंगे तो प्लस ऑपरेटर यूज होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर यूज करेंगे, माइनस करेंगे तो सब्ट्रैक्शन वाला सिंबल ऑपरेटर यूज होगा। अगर हम 2 नंबर्स की डिवीजन करना चाहते हैं फिर हम डिवीजन ऑपरेटर को यूज करेंगे। सो अगर हम इनपुट देते हैं तो हमारी इनपुट को जो सीपीयू होता है प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके वो स्क्रीन पर एक रिजल्ट देता है, दिस इज आउटपुट। आउटपुट को डिफाइन यूं करेंगे, डेटा जनरेटेड बाय अ कंप्यूटर इज कॉल्ड आउटपुट। एग्जाम्पल देखें, जो हमने टेक्स्ट लिखा था 2 3, प्रोसेस किया हमारे प्रोसेसर ने, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ने ऑपरेटर के ज़रिए से प्रोसेस किया, हमने कमांड दी 2 + 5, जो रिजल्ट आया है 7, दिस इज आउटपुट। एक्चुअल मॉडल ऑफ द कंप्यूटर बाय ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम के ज़रिए से हम देख सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा है इनपुट, जो कि इनपुट डिवाइसेस पर मुश्तमिल होता है। दूसरा जो हमारा हिस्सा है वो है सीपीयू, जो फर्दर 3 हिस्सों पर मज़ीद मुश्तमिल होता है। और जो तीसरा ब्लॉक डायग्राम में मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ वो है आउटपुट, जो कि आउटपुट डिवाइसेस पर मुश्तमिल होता है। इनपुट डिवाइसेस, जैसा कि मैं आपसे माइक के ज़रिए बोल रहा हूँ, ये इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड के ज़रिए डाटा हमने इंटर किया, ये इनपुट डिवाइसेस हैं। यानी इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए से कंप्यूटर में डाटा एंटर किया जाता है, ये पहला स्टेप है। जो ही डाटा सीपीयू में जाता है तो ये मज़ीद 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। कंट्रोल यूनिट, ये तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट, ये तमाम ऑपरेशंस जैसा कि प्लस, माइनस, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई, इसी तरह जो लॉजिक ऑपरेटर्स हैं, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, ये तमाम जो ऑपरेटर्स हैं ये लॉजिक हैं, इनको अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कंट्रोल करता है। ओवरऑल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल यूनिट जो है वो कंट्रोल करता है। इसके अलावा हमारे सीपीयू के अंदर एक मेन पार्ट मेमोरी यूनिट होता है, जो डाटा को शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी के तौर पे स्टोर कर लेता है। ये हो गया हमारा सीपीयू। सीपीयू की प्रोसेसिंग के बाद आगे आता है आउटपुट डिवाइसेस, जो कि आउटपुट देता है, जैसा कि एलसीडी ये हमें आउटपुट देती है, जैसा कि आप मेरी वीडियो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, दिस इज़ आउटपुट। जिस डिवाइस के ज़रिए से आप देख रहे हैं उस डिवाइस का नाम आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर।
कंप्यूटर के पार्ट्स में एक होता है प्रिंटर, स्पीकर्स, मॉनिटर, सीपीयू, speakers, keyboard, mouse. These are the basic parts of a computer. नेक्स्ट स्लाइड पर हम देखते हैं व्हाट इज सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, डेटा और प्रोग्राम्स used to operate computers and execute specific task. सॉफ्टवेयर एक ऐसी इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है या डेटे को कहते हैं या प्रोग्राम्स होता है जिसको कंप्यूटर में कोई भी वर्क या कोई भी टास्क परफॉर्म करना हो तो सॉफ्टवेयर को यूज किया जाता है. सॉफ्टवेयर की टू टाइप्स हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर्स. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स जैसा कि शॉर्ट फॉर्म में हम एप्स कहते हैं, इनको डिज़ाइन किया जाता है फॉर एंड यूज़र्स. जैसा कि हम मुख्तलिफ एप्स मोबाइल फ़ोन के प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करते हैं. एग्जाम्पल इसकी वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, अकाउंटिंग एप्लीकेशन, वेब ब्राउज़र, ईमेल क्लाइंट, मीडिया प्लेयर, फाइल वीवर्स, simulators, console game or photo editor. These are application softwares. उसके बाद है सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम that is designed to turn a computer's hardware and application programs. यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्राम को और कंप्यूटर्स हार्डवेयर को एग्जीक्यूट करने के लिए या रन करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया गया है. फॉर एग्जांपल, अगर हम कंप्यूटर सिस्टम में अगर सोचते हैं एज अ लेयर्ड मॉडल, द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूज़र एप्लीकेशन. डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने कंप्यूटर का एक इंट्रोडक्शन के तौर पे एक लेक्चर दिया है आपको. उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बड़ा इंफॉर्मेटिव और पसंद आया होगा. फीडबैक ज़रूर दीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.